الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری دینی بہنیں، عزیز بہنیں، امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ چلیے ہم بلا تاخیر ہماری کلاس کی شروعات کریں گے۔ آپ سب کو اسکرین دکھائی دے رہا ہے؟ جی دکھائی دے رہی جی ہے۔ آج ہی بیٹھ ہوئی ہے۔ جی کلاس روز چلے گی یا آپ آج کی آواز اسٹارٹ ہوئی کٹ ہے؟ رہی ہے۔ ایک کلاس روز چلے گی یا آج ہی اسٹارٹ ہوئی ہے؟ جی اس کے 3 کلاسز ہو چکے ہیں، میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ریویژن بھی کرا دوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے سب کے میں مائک سے بھی میوٹ پہ کر دوں گی۔ ایسے سب کو تو شکایت نہیں ہے نا کہ میری آواز سب کو بریک ہو کے آ رہی ہے؟ یہ کسی جی کسی کے الحمدللہ پاس میں؟ اچھی، آپ کی نہیں آواز باجی صحیح آ رہی الحمدللہ اچھی آ رہی ہاں، کلیئر ہے۔ تو جس کے پاس نہیں کلیئر نہیں نہیں ہے اس کا مطلب ان کے نیٹ ورک ایشو ہوگا ماں۔ جی آواز تو اچھی آ رہی ہے۔ جی یہ روز چلے گی کلاس اتنی بجے یا 3 دن، کیونکہ ہفتے میں کے آج 3 ہی دن۔ فرسٹ ڈے اٹینڈ کری ہوں اس کلاس اس لیے۔ اچھا اچھا، ہفتے کے 3 روز ہوتے ہیں، پیر ہوں منگل چہارشنبہ، جی ٹھیک ہے؟ ہوں اتنی ٹائم میں ٹھیک، جی جزاک اللہ۔ 11 بجے کے یہ ٹائم پہ۔ پہلی کلاس ہے یا پہلے بھی اسٹارٹ ہو کے ہے سیشن؟ پہلے یہ اسٹارٹ ہو کے تھی، آدھا گھنٹہ ہی ہوتی ہے یہ کلاس، لیکن میں کیونکہ اگر آج کوئی نئی بہنیں جڑی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا میں جی بتا دوں گی، اور دوسرا یہ کہ دوسری جو بہنیں ہماری آلریڈی کلاس لے چکے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا۔ تو بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ میں آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ آج کا جو اصل موضوع ہے وہ تو آپ کو میں بتا ہی دوں گی، وہ ڈیٹیلز میں زیادہ دیکھنا ہے، تھوڑا بہت ہی بتاؤں گی میں اس وجہ سے تاکہ آپ کو تعارف ملے۔ اور اس کا دوسری ریکارڈنگ بات، بھی ہے جو جی؟ جتنے کے آپ کے کلاسز مس ہو چکے ہیں آپ ریکارڈنگ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اچھا اس کی ریکارڈنگ ہے؟ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ وہی کی۔ تو آج کے ٹاپک پہ ہم زیادہ ڈیٹیلز دیکھیں گے، جتنے بھی گزشتہ کلاسز ہیں اس کے آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، ریکارڈ بنا سکتے ہیں، اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس لغت العربیہ کی اہمیت کو دیکھ چکے ہیں، اور جو نحو اور صرف کی بات ہے اس کا میں تھوڑا سا، جیسے کہ ابھی بہن کہے کہ ان کی پہلی کلاس ہے، دیکھیے نحو اور صرف یعنی کہ عربی گرامر جیسے کہ قرآن مجید لکھی ہوئی ہے اور حدیث کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ جیسی ہو بہو ہے ہمیں تھوڑا اسے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم غیر عربی لوگ ہیں، یعنی کہ ہم عربی بول چال بولنے والے نہیں ہیں۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور لوگ دوسرے غیر عربی لوگ بھی دین میں داخل ہونے لگے تھے، تب دشواری آ رہی تھی عربی کو سمجھنے کے لیے۔ عربی لوگ تو بہت اچھی عربی جانتے ہیں اور انہیں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے نہ بات کرنے میں نہ بات سمجھنے کے لیے، لیکن ہم جیسے لوگ جو آج بھی دقت محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جب دین میں داخل ہونے لگے تھے لوگ، اس وقت کی دشواری کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اس کے کچھ ضوابط بنا جائے، اس کا نظام بنا جائے، جس سے کہ غیر عربی یعنی کہ عربی زبان جس کی نہیں ہے، جس کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، ان کی آسانی کے لیے اس کے ضوابط بنائے گئے، یعنی اس کا پورا خاکہ کھینچا گیا، اس کو ایک سانچے میں ڈالا گیا، اور ہمیں سمجھنے کے لیے عربی کو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے، جو عربی سے ہم اگر پڑھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے جو ضوابط بنائے گئے، جیسے نظام بنا گیا، اسے ہم عربی گرامر سے دیکھیں گے۔ تو ہم عربی گرامر پڑھیں گے تو ہی قرآن سمجھ میں آئے گی،
लेकिन कुरान की अरबी जो बनी है, जो अरबिक जो नहू और सर्फ बना है, वो कुरान से ही बना है। अरबी से कुरान नहीं बनी है, बल्कि कुरान मजीद और हदीस को देखते हुए उसके ही मुताबिकत से इसका निजाम आया है और इसके पूरे जवाबित बने हैं। और ये दिक्कत वहां पर देख चुकी थी। और ये जेर निगरानी जिसकी रही है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी जेर नजर, उनकी जेर प्रस्ती में और उनके जेर निगरानी में ये सारे जवाबित बनाए गए। ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि नहू और सर्फ की अहमियत चूंकि हमारे करीब में नहीं है, लेकिन करीब में नहीं है, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कम से कम हम इतना तो मालूम कर सकते हैं। और ये कहाँ से बनी है वो भी हमें जानना बेहद जरूरी है। किसकी जेर निगरानी में, हम वो भी देख रहे हैं। और जो बनाए हैं इसमें, उनका नाम था अबुल असवद दौली, ये जो बनाए थे। लेकिन जेर निगरानी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जेर निगरानी में कामिल हुआ था। ये जितने भी जवाबित नहू और सर्फ के हैं। खैर, इनिशिएट हम करेंगे अपने मौजू की तरफ में, जिसमें कि हम ये देखिए कि तारुफ में हम देखें कि मैं अरबी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अरबी हूँ, कुरान मजीद अरबी में है, और अहले जन्नत यानी कि जन्नत में रहने वाले लोगों की जबान भी अरबी है। हमें इसे समझना जरूरी है और ये हमें अहमियत भी देना जरूरी है। अब ये जो दुआ है, जैसे कि मैंने अभी शुरुआती कलिमात के साथ में जब शुरू की थी क्लास से पहले, मैंने दुआ के साथ में, और वो कुरानी दुआ है, अब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अपने कुरान मजीद के अल्फाज के साथ में, हमें एक तसल्ली भी है और सुकून और इत्मीनान भी कि अरबी जुबान दरअसल तो बेहद आसान है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र करने वालों के लिए, कुरान का जिक्र जिस करते हैं उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसानी की है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर, यानी कि इसका क्या तर्जुमा आता है, बिलाशुबा हमने कुरान करीम को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे। यानी कि जो इससे नसीहत, क्योंकि ये हिदायत के लिए आई है, कुरान मजीद आई किस वजह से है, हमारी रहनुमाई के लिए। अब इससे जो मुस्तफीद होना चाहते हैं, जो फायदा उठाना चाहते हैं, जो हिदायत लेना चाहते हैं, है कोई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहे हैं, क्या हमारे पास में इसका जवाब है? अगर कोई बड़े हमसे कोई सवाल करते हैं, तो क्या हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें जवाब दें, मुखलिस होकर, यानी कि सच्चाई से जवाब दें? उसी तरीके से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आप भी जवाब में नआम कहें? इंशाअल्लाह। उसी तरीके से यहाँ पर हमें एक तसल्ली भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसानी अता की है, हमें बस खोलना है, समझना है, या फिर इसमें कोशिशें हमारे डालना है। इसमें क्या होता है, एक यही चीज है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, इसमें यही चीज आपको सोच कर रखना है, और ये आपको इरादा पुख्ता करना है कि इसमें मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होती है। कोई अगर कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है जो आसानी में बदले। हमारी भी तो जबान ये नहीं थी, लेकिन अगर जो दुरूस देने वाले आपके सामने हैं, तो उनसे भी पूछिए कि आपने आखिर कैसे इसको हासिल किया, आपका क्या निजाम था, आप इसको कैसे रूटीन में अपने लेकर आए। तो हम यही बताएंगे कि आप इसमें जितनी मेहनत करेंगे लिखने के लिए, लिखते जाएंगे और इस पर मेहनत करते जाएंगे, इसके टर्म्स को याद करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक महीना तो मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद का महीना बहुत आसान लगेगा। और ये भी है कि इसको समझना बहुत आसान है, यकायक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर क्लास होते ही, फिनिश होते ही, एकदम पैक होने के बाद में आपको थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। वो इस वजह से क्योंकि आप दोबारा से उसको अपने हाथों से नहीं लिखते। जब तक कि आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, ये दुश्वारी आपको महसूस होगी। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, कितने उन्हें लालच देते हैं, कितना उन्हें प्यार से मनाते हैं कि लिख लो, क्यों लिखने के लिए देते हैं, जितना लिखेंगे उन्हें याद होता है। लेकिन हम दुनियावी पढ़ाई के लिए उन्हें इतनी तरगीब दे रहे हैं, इतनी अहमियत दिला रहे हैं, लेकिन क्या हमारा काम नहीं है कि इसके जवाबित, इसका जो निजाम बना है कुरान मजीद को जैसी लिखावट में है, उसको समझने के लिए हमें अरबी ग्रामर को देखना समझना
और लिखना पढ़ना जरूरी है। अभी डेफिनेशंस के सबसे पहले मैंने जब इसकी शुरुआत की, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे, यानी टर्मिनोलॉजी एस्पेक्ट के साथ में हम पढ़ेंगे। पहले टर्म्स को अगर हम जानेंगे, अगर मैं कोई भी चीज कह रही हूँ, जैसे मफ्तू कहूँ, मंसूब कहूँ, मजरूर कहूँ, तो आपको ये नया दिखेगा, ऑब्वियसली हार्ड दिखेगा। मतलब ये क्या बोल रही है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरा काम क्या है कि मैं अगर आपको कह रही हूँ कि मरफू, तो मैं ये कहाँ से बोल रही हूँ, क्या वजह से बोल रही हूँ, इसके मायने क्या है, मेरा काम है आपको ये मायने बताना। तो जिसे कि हम कहेंगे डेफिनेशंस। उसी तरीके से पहले डेफिनेशंस अगर हम जान लेंगे, किन को क्या कहा जाता है, किस वजह से कहा जा रहा है, और इसमें आती क्या चीजें हैं, ये कंसिस्ट ऑफ व्हाट, जिन चीजों से ये बना है, तो हमें क्या हो जाता है, वाज़ेह हो के चीजें समझ में आती हैं। जैसे बिलफर्ज यहाँ पर सबसे पहला डेफिनेशन आएगा आपको, वाहिद, यानी कि एक वाहिद, क्योंकि हम मारूफ है इस लफ्ज से। लेकिन तस्निया, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये हर कोई वाहिद नहीं होता है, हर कोई नहीं होता है। वाहिद से मुराद होता है किताबुन और मुस्लिमुन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, एक के मायने होते हैं। किताब से आप महसूस कर सकते हैं कि ये एक किताब है, मुस्लिमुन से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक किताब है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर और एक भी इसमें लफ्ज डाल दूं कि सैयारा, जैसे कि कार के मायने होते हैं, शहर, बलद के मायने होते हैं, तो ये सब मायने तो नहीं मालूम होंगे, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वाहिद है, जमा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, डुअल है। ये हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको हम जांचेंगे, इसको हम समझेंगे, इसको याद करेंगे। तो वाहिद से मुराद ये है कि एक, जिसे एक की निस्बत से के लिए कहा जाता है। किताबुन अगर कह रहे हैं तो यहाँ पर एक ही किताब के मायने, एक ही किताब है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है। मुस्लिमुन यानी एक मुस्लिम। तो एक पर जो इकरार करता है जो लफ्ज, वो वाहिद में आएगा। अब इसकी जरूरत क्यों आएगी हमें, वाहिद को, ये डेफिनेशंस को याद करना क्यों जरूरी है। बाद में अगर मैं कहूँ कि वो लड़का या वो लड़की, ये किताब, वो किताब, किताब एक है, किताब दो है, या किताब की जमा है, या मुस्लिम एक है, मुस्लिम दो है, मुस्लिम एक लड़का है या मुस्लिम दो लड़के हैं, एक लड़की है या दो लड़के हैं या जमा है, ये सब कुछ तो हम जान लेंगे। लेकिन उसमें जो टीचर्स वर्ड्स को यूज करेंगे, डेफिनेशंस को यूज करेंगे, वो होंगे तस्निया, वो होंगे जमा, वो होंगे मुजक्कर, वो होंगे, एक मिनट, जी अभी आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही है वाहिद की डेफिनेशंस की। जी जी जी। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोग को ये वाला पेज नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो बहरहाल हमने वाहिद को देखा, किताबुन, मुस्लिमुन, जो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। तस्निया, ऐसा इसम जो डुअल, यानी कि दो अशखास, शख्स की जमा अशखास, या दो चीजों, या चीज की जमा चीजों, हम कहते हैं दो चीजें। तो बुनियाद का तस्निया में क्या होगी, सिर्फ दो, ना एक ना जमा, दो, बीच का हिस्सा। देखिए अरबी में क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में सिंगुलर से डायरेक्टली प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, इस तरीके से। लेकिन इसको जो डिविजन्स में दिया गया है अरबी का, उसमें सिंगुलर के बाद में डुअल आना जरूरी है, यानी दो के लिए भी यहाँ पर अल्फाज में मिलते हैं, सिर्फ ओनली टू के लिए। और इन सिर्फ टू को देखना जरूरी है, और ये कैसे बनाते हैं उसका भी फॉर्मूला हम देखेंगे। लेकिन दो के लिए भी यहाँ पर एक जगह है, एक मुकाम है दो का भी, जिसे कि हम तस्निया कहेंगे, जिसमें के बाद सिर्फ दो की होगी, या दो चीजों की होगी, या दो अशखास की होगी, यानी कि सिर्फ दो के लिए, ना वन, ना वाहिद, ना सिंगल, ना डायरेक्टली जमा प्लूरल, बल्कि बीच वाला हिस्सा तस्निया। तो तस्निया क्या कहेंगे इंग्लिश में, ड्वेल, जो
दो के लिए कहा जाएगा, दो चीज होंगे या दो शख्स होंगे। अशखास, चीजों को जो जाहिर करता है उसे तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। जैसे कि मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। अब मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी में क्या फर्क है, इंशाल्लाह हम उसको एराबी हालत में जानेंगे। हम बाद में जब जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते रहेंगे उसके बाद में हम देख, अभी सिर्फ आप डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, जिसमें कि आपको ये पिंक में जो हाईलाइट हो रहा है वाहिद, तस्निया, जमा, जमा की तरफ हम चाहिए। जमा, ये बहुत आसान है हमें समझने के लिए। जमा यानी कि प्लूरल, जो कि दो से ज्यादा अशखास को या चीजों को जाहिर करता हो, उसे जमा कहते हैं। जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमत। देखिए अगर हम इसके लफ्जी मायनों की तरफ में जाएंगे तो ये सबका एक ही मायना होता है। बस होता क्या है कि किसी में पेश की, किसी में जेर की, किसी में तनवीन की, या किसी में कोई एडिशन की बात होगी, तो वो क्या एडिशन क्या वजह से होते, क्यों होते हैं, वो हम देखेंगे। जो कि हमें पढ़ाई वही करनी है। ये देखिए मायने यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम के ही आ रहे हैं। वो सब मुस्लिम है, बहुत सारे मुस्लिम यानी मुसलमान की जमा है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। तो ये मेल और फीमेल के लिए मुबन्नी की बात है। लेकिन ये कैसे बना रहे हैं हम, क्या वजह से बना रहे हैं, और हमें ऐसे क्यों बनाना पड़ता है, वो हम इंशाल्लाह बाद की क्लासेस में देखेंगे, डीपली देखेंगे और उसको डेप्थ के साथ में समझेंगे। दूसरी चीज, अब जैसे कि हमें मुस्लिमूना अगर कहें तो ये मुसलमानों की जमा है कि बहुत सारे मुस्लिम मर्द, मुस्लिमातुन बहुत सारी मुस्लिम औरतें। अब इसमें सिर्फ पेश की तनवीन और जेर की तनवीन से इसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। वो वजह क्या है वो मैं एराब में बताऊंगी। जैसे कि अगर हम मुस्लिमुन यहाँ पर देखें, फिर मुस्लिमानी तस्निया में है, मुस्लिमूना जमा में है, जिससे कि हम ये अल्फाज के मायनों में ये देखा जा सकता है कि मुस्लिमुन कहें तो यहाँ पर हमें सिर्फ वाहिद काउंट करना है, यानी एक ही मुस्लिम की बात हो रही है। मुस्लिमानी यानी कि तस्निया हम कहेंगे तो अभी मैं डायरेक्ट, अब ये नहीं है डेफिनेशंस, नहीं है डेफिनेशन के बाजू नहीं है, बल्कि आपको सीधे सीधे कुरान की आयत आपके सामने आ रही है। तो हम क्या उसको कंसिडर करेंगे, वाहिद में डालेंगे, तस्निया में डालेंगे, या जमा में डालेंगे। जैसे सूरह रहमान की आयत है रिपीटेड, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुकज़्ज़िबान यानी कि दो जो चीजें आ रही है जहां जहां पर दो बातों के लिए मुबन्नी बात होती है, अलिफ नून का इजाफा होता है, तो वहां पर दो चीजों की बात होती है। तुम किन किन नेमतों को रब की दी हुई ठुकराओगे, ये माने आते हैं। लेकिन मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे कर रहे हैं, किन दो लोगों से कर रहे हैं, वो बात है। तो देखिए यहाँ पर मुश्तमिल जो इंसान की ये मखलूक में अल्लाह ताला ने इंस और जिन्स कितने लोगों की बात की है, दो लोगों की बात की है। सुभान अल्लाह। तो देख हर जब लफ्ज को जब हम समझेंगे ना तो हमें इसकी डेप्थ मालूम होगी, इसकी बनावट मालूम होगी, और सुभान हर हुर्फ पे हमसे खुद ब खुद दिल से निकलेगा सुभान अल्लाह, क्या बनावट है, क्या लिखावट है। और समझने के लिए बिल्कुल खुली खुली और आसान तरीके से बस हमें समझने की कोशिश करना है। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन उसे आसान बना देंगे। उसी तरीके से अभी ये वाहिद, तस्नीया और जमा हमें मालूम हो गया है, इसके डेफिनेशंस। अभी उसके बाद में आ रहा है मुजक्कर। मुजक्कर यानी कि मेल को कहेंगे, मेल जेंडर जो होता है उसको हम कहेंगे मुजक्कर। नर को मुजक्कर कहते हैं, जैसे कि बॉय, यहाँ पर वलदुन है। मुअन्नस बिंतुन, फीमेल, मादा को मुअन्नस कहते हैं। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम हाजिर और गायब। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन जो होता है, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल देके आगे बढ़ जाऊंगी, हमारा जो मेन आज का टॉपिक है उस तरफ में जाएंगे। जो भी आपको मिस हो रहा है, जहां पर फिर से आपको समझने की जरूरत है, तीन क्लासेस के तीन रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएगी, आप उसको सुन ले सकते हैं, जिसमें कि मुतकल्लिम, हाजिर, गायब मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। मुतकल्लिम यानी कि मैं हूँ, मैं बात करने वाली हूँ, स्पीकर हूँ। इट मीन्स आई एम द फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु टॉक्स इज स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। दैट मीन्स वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर वो हो गया मुतकल्लिम। सेकंड पर्सन आप लोग हैं, सुन रहे हैं, सुनने वाले जो सामईन हैं, यहाँ पर हाजिर है,
मुखातिब है। आप लोग किससे मुखातिब है? आपके टीचर से मुखातिब है। तो जो सुनने वाले हैं, और मैं आपको देख सकती हूँ, मेरे सामने हाजिर है, आप और मैं मुखातिब है एक दूसरे से, तो क्या हो गया? वो सेकेंड पर्सन, जिसे हम कहेंगे हाजिर या मुखातिब। ठीक है, इन टर्म्स को याद रख लीजिए से। उसके बाद गायब। गायब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, आसान है हमारे लिए समझना, वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। वो थर्ड पर्सन हो गया। तो कितने पर्सन की बात होगी? जो भी लफ्ज हम देखेंगे, जो भी लफ्ज हम देखेंगे, उसमें आप फर्स्ट पर्सन देखेंगे, सेकंड पर्सन देखेंगे, थर्ड पर्सन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो खुद बात करने वाला होता है, चाहे वो एक बात कर रहा हो या जमा होकर बात कर रहा हो, जैसे कि आई और वी का आना। दूसरा हिस्सा जो सेकेंड पर्सन में आता है, वो जो जिसमें के सुनने वाले होते हैं, सुनने वालों में सेकेंड पर्सन होते हैं। जो मौजूद होते हैं, आप बज़ाहिर उन्हें देखते हैं, या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो, या फिर आप उनके साथ मुलाकात करके बैठे हो, इनफैक्ट वो हाजिर होते हैं, मुखातिब एक दूसरे से होते हैं, वो सेकंड पर्सन में आएंगे। गायब जो आपके बीच में मौजूद नहीं है। तो हर लफ्ज को हम इस तरीके से जांचेंगे, या तो वो मुजक्कर होना चाहिए, या वाहिद है, तस्निया है, जमा है, या फीमेल है, मुतकल्लिम है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इस तरीके को देखा जाता है हर इसम में। थर्ड पर्सन में अभी देख लीजिए आप, हुआ, हिया, हुम। हुआ के मायने होते हैं ही के। तो अगर मैं किसी ही के बारे में बात कर रही हूँ, या हम किसी और थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं, जिसमें कि अभी की आज की क्लास में हमने किसके बारे में जिक्र किया, कि इसका जो निजाम, इसके जो जवाबित बने थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया। तो अभी वो मौजूद तो नहीं है, उनका जिक्र किया है, तो वो गायब है, थर्ड पर्सन है। तो वो एक के अगर हम कहेंगे तो हुआ होगा। अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों को मिलाकर बात की जाएगी, तो अनहुमा कहते हैं, सुनते हैं ना आप, हुमा। तो हुमा का उसमें जमीर आएगा। हिया अगर कह रहे हैं, या अगर कोई ऐसी स्टूडेंट है जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, तो शी कह के हम कहेंगे, क्योंकि वो गायब है, तो वो हिया कहेंगे हम। और हुम जमा होता है, मर्द के लिए जमा होता है, औरतों के लिए हुन्ना होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में इसमें जमा जो कलेक्टिव नाउन में होता है, जिसमें कि आप कौम लफ्ज से पहचान सकते हैं, जो जाहिरी तौर पर वाहिद हो। जमा तो है, ग्रुप्स में इंसान बहुत सारे हैं, ढिगार में है, लेकिन एक जमात में है, जैसे कि एक लफ्ज में आप उसको कह सकते हैं, ग्रुप, कौम। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कुछ बहनें यहाँ पर कोई एक ग्रुप से, कुछ बहनें कोई और ग्रुप से, कुछ बहनें कोई और ग्रुप से हैं, तो वो नाम देंगे। नाम एक ही लगाया जाएगा, लेकिन उसमें ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, तो वो इसमें जमा है। हरूफ इल्लत, ये बीमार हुरूफ होते हैं, उसमें सिर्फ तीन ही आते हैं, अलिफ, वाव और या, हुरूफ इल्लत। हुरूफ सही, इसके अलावा जितने भी हुरूफ है, हुरूफ तहजी के, इसके अलावा वो हुरूफ सही होते हैं। और अलिफ, वाव, या, ये हुरूफ इल्लत होते हैं, वीक लेटर्स होते हैं। इसके भी डिटेल्स आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगे। हुरूफ सही, इसमें फर्क क्या होता है? अलिफ, वाव और या को कहीं से निकाला जा सकता है, या फिर उस पर अगर हरकत ना भी हो, तब भी उससे लिखा जा सकता है। लिखने पर भी उस पे कोई मुनहसिर कोई बात नहीं होती है, बल्कि उसे निकाला भी जा सकता है कहीं से। कहीं एड ऑन भी होते हैं, तो कोई उसमें ज्यादा खलल नहीं होती है, ये कहीं पर भी किसी भी तरीके से एडजस्ट किए जाने वाला होता है, निकाला भी जा सकता है। लेकिन जो हुरूफ सही है, जैसे कि कतबा, नसरा, इन अल्फाज को जिस इसके अलावा अगर देखेंगे, तो कहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि काफ अगर कहीं ड्रॉप कर दे तो कोई मफहूम उसका सेम सेम बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई होंगे, तो वो जैसी हालत में है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि औजान अलग हो सकते हैं, जैसे कि नसरा, यंसुरु, नसरत, नसरना, नसरती, इस तरीके से बन सकते हैं। लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये हुरूफ सही है। और हुरूफ इल्लत सिर्फ तीन है, इसको हम कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे जब इसका मौका आएगा। अब हम देखेंगे मुअर्रिब। मुअर्रिब जिस लफ्ज के आखिर में हरकत बदलते रहते हैं, कभी जेर, कभी पेश और कभी जबर, उसे मुअर्रिब कहते हैं।
मुअर्रिब से मुआराद ये है एराब। एराबी हालत असल तो हम नहू के जब देखेंगे, उसके कैटेगरीज देखेंगे, तब हम देखेंगे इसम को जो पहचानना होता है, इसम की पहचान होती है, उसको पहचाना किस तरीके से जाता है, उसमें हम इसको बहुत डिटेल्स में देखना है, बहुत डिटेल्स में। और ये पढ़ते वक्त में मजा भी बहुत आता है और जानकारी बहुत हासिल होती है। जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिमुन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन। आखिर में जो आपको कहीं दो पेश और दो जबर और दो जेर है, इस पर ही ये बात हो रही है कि जिस लफ्ज के आखिर में हरकत बदलते रहते हैं। कहीं पर देखिए मुस्लिम, 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 नाम एक ही है, मायने एक ही होंगे, मायने तब्दील नहीं होंगे, लेकिन इसकी एराबी हालत बदलती है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर आप देखिए, नजर आ रहा है आप लोग को, जहां पर मुहम्मदुन, मुहम्मदन इस तरीके से लिखा हुआ है। ये दिख रहा है आप लोग को? जी नहीं बाजी। हाँ अभी बाजी देखिए, अब आ गए। ये ठीक है। हाँ ये दुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मुहम्मद क्या नाम यहाँ पर बदल गया है दो पेश लगाने की वजह से? नहीं, बल्कि ये निस्बत जा रही है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी। उसी तरीके से दूसरे कलीमा की तरफ में आप देखिए, दूसरी लाइन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुहम्मदन आया है, ऊपर आप देख रहे हैं दो पेश, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं दो जबर। और दुरूद इब्राहिम की जो पहली इनिशियल लाइन है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी कि दो जेर के साथ में आप मुहम्मदिन पर देख रहे हैं। तो तीनों जगह आपको अलग अलग अलामतें लग रही हैं। तो ये आखिर पर जो है, ये आखिर, आखिर की तरफ में हमें देखना है। आखिर में जो तब्दीली है, इसको एराब कहते हैं। ये एराबी हालत की वजह तब्दीली की क्या होती है, उससे पहले का जो लफ्ज होता है उसके ऊपर ये बात, और ये इसका लफ्ज का मुकाम जो होता है, वहां पर इसके एराब बदलते हैं, यानी कि जबर जेर पेश का बदलना। मुहम्मदन आया है तो इसमें लफ्ज के मायने नहीं बदले हैं, ये नाम के मायने नहीं बदले हैं, लेकिन सिर्फ इसकी एराबी हालत बदली है। वो उसकी वजह क्या है, ये अन्ना, ये क्या है, ये हुर्फ नस्ब है। तो जो हुर्फ है, हुर्फ भी आगे इस्म को तब्दील करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हर्फ के जब अकसाम को देखेंगे, तीन बातों को मुश्तमिल होते हैं हर अल्फाज को जांचने के लिए, इस्म, फेल और हर्फ। तो अन्ना क्या है, हर्फ है, इस हर्फ की वजह से आगे इस्म को जबर देना पड़ता है। उसी तरीके से अला, क्योंकि ये हर्फ जर है, ये भी हर्फ है, इस हर्फ की वजह से यहाँ पर जेर दिया गया है। तो मायने नहीं बदलते हैं, बस एराबी हालत बदलती है। एराबी हालत से मुराद आखिरी पर होता है, बल्कि पहले वालों पे नहीं होता है, आखिर को देखना होता है। क्लियर? जिसमें के मुअर्रिब है। उसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन है यहाँ पर। उसी तरीके से मबनी, मैं इसको और डिटेल्स में समझाऊंगी आपको। मबनी, जिस लफ्ज के आखिर में कोई तब्दीली नहीं पाई जाती, उसे मबनी कहते हैं। अब ये लफ्ज ऐसा होता है, जैसे कि कहीं आप देख रहे हैं कि कुछ दो पेश, दो जबर, तनवीन, या फिर तनवीन का ना आना भी हो सकता है। लेकिन मबनी अस्मा में क्या होता है, मबनी में क्या होता है, कहीं पर भी इसकी हालत बाजी तब्दील ही स्क्रीन नहीं शेयर होती। कीजिए। बाजी स्क्रीन शेयर कीजिए ओके। वो बुक। मबनी में तीनों भी हालत नहीं बदलती है, यानी कि ये दो पेश, दो जबर, दो जेर आ रहे हैं, ये मबनी में किसी तरीके की तब्दीली नहीं होती है, बल्कि जैसा लफ्ज है वो हमेशा एक जैसा होता है। किसी सूरत में जैसे अन्ना आ रहा है, अला आ रहा है, इला आ रहा है, फी आ रहा है, कुछ ऐसे हुर्फ होंगे जिससे कि वो तब्दील करने पर जोर देते हैं। लेकिन मबनी अस्मा ऐसे होते हैं, मबनी वाले जो अल्फाज होते हैं, वो किसी भी हालत में नहीं बदलते हैं, बल्कि वो जैसे है
वो वैसे ही रहते हैं। उसी तरीके से मुनसरिफ अस्मा, इसमें भी क्या है, मुनसरिफ। मुनसरिफ के मायने वो होते हैं, वो इस्म जिसकी आखिर में तनवीन और जेर आ सकती है, वो मुनसरिफ होते हैं। तनवीन भी आ सकता है या जेर भी आ सकती है, तनवीन और जेर आ सकती है। मैं आपको इंशाल्लाह भी एक टेबल में लिखकर बताऊंगी। और गैर मुनसरिफ, वो इस्म जिसकी आखिर में तनवीन और जेर नहीं आ सकती, तनवीन नहीं आ सकती, उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। जैसे कि उमरू, उस्मान। कुछ ऐसे इस्म होते हैं जिस पर तनवीन आ ही नहीं सकती, उमरुन नहीं कह सकते, उस्मानुन नहीं कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक नाम आया है अलीयुन। दोनों भी नाम ही है ना, उमर भी नाम है, उस्मान भी नाम है, अली भी नाम है, लेकिन अलीयुन पे तनवीन आ रही है। उमर पर तनवीन नहीं आ सकती है, उस्मान पर तनवीन नहीं आ सकती, अदनान पे नहीं आ सकती, सलमान पे नहीं आ सकती, इब्राहिम पे नहीं आ, तनवीन नहीं आ सकती इस पे। अलीयुन, सोलिहुन, नूहन। कुछ ऐसे अंबिया के नाम है जिस पर के तनवीन आती है, कुछ ऐसे अंबिया के नाम है जिस पर के तनवीन नहीं आ सकती, और कुछ ऐसे भी अंबिया के नाम है जो कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों में भी नहीं आते, बल्कि वो मबनी अस्मा होते हैं। कैसे, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ये टेबल आप सबको दिखाई दे रहा है, करेक्ट? मरफू, मंसूब, मजरूर, इसको आप बाद में लेटर ऑन समझ सकते हैं। मुनसरिफ, अभी जैसे हम देखें मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, मबनी, सिर्फ समझ जाइए अभी, इसमें कोई जोर मत दीजिए। मुनसरिफ को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ डिटेल पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ये टेबल की शक्ल में आप लोग को बता रही हूँ। मुनसरिफ अस्मा का टेबल में दो पेश के साथ में है। सबसे पहला नाम मुहम्मदुन, फिर मंसूब में है यानी कि जबर से, इतना आप समझ सकते हैं। ये पेश वाले हालत में है, ये जबर की हालत में है, ये जेर की हालत में है। मायने नहीं बदलते हैं, बस सिर्फ एराब बदल रहे हैं। मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो इस नाम के हिसाब से जहां पर फतह लिखा हुआ मरफू, जो कि फतेह की हालत में होता है, सॉरी पेश की, उसे रफा कहते हैं, मुहम्मदुन। मंसूब नसब यानी कि ये फतह है, मुहम्मदन। मजरूर यानी कि जेर पर है ये बात, तो ये मुहम्मदीन हम पा रहे हैं। गैर मुनसरिफ में क्या होता है, गैर मुनसरिफ में आप एक नाम देखिए, मैं अभी आप लोग को लिखकर ओपन कर रही हूँ। एक नाम है यहाँ पर इब्राहिम, ठीक है? जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी बाजी।
जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इब्राहिमू पेश में है, और ये पेश की हालत में गैर मुंसरिफ में। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे यहाँ पर मुहम्मदन आया है, एक तो यहाँ पर अलिफ नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें जबर के साथ में है। ये तो ठीक है, जबर की ही कैफियत में है और जबर की जगह ही है। लेकिन जहां पर जेर आना चाहिए वहां पर जेर नहीं पाया जा रहा है, बल्कि जबर ही है, इब्राहिमा। तो जेर की जगह भी जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जेर नहीं आ सकता है, वो गैर मुंसरिफ होते हैं। तो इसकी ये कैफियतों की बदलने की हालत, ना बदलने की हालत, हम इसको डिटेल्स के साथ में देखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसी तरीके से मबनी अस्मा को हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये किसी भी हालत में तब्दील नहीं होते हैं, बल्कि जैसे यहाँ पर हाजा है, हाजा के मायने ये के होते हैं, ये, जालिका वो। तो जो इशारे के लिए या अस्माए मौसूलात जो होते हैं, जो रिलेटेड नाउन्स होते हैं, कि वो सब लोग, हा उलाई उलाइका या हाजा जालिका, और जिसमें अंबिया के नाम में ईसा है, ये अलिफ मकसूरा जिस पर होता है, यहाँ पर खड़ा जबर होता है, वो क्या होते हैं, वो मबनी अस्मा होते हैं। मबनी अस्मा से मुराद ये है कि जिसमें आपको तब्दीली नहीं पाई जाती है, आप इन्हें तब्दीली हालत में नहीं पाते हैं, बल्कि हर हालत में ये एक जैसे ही आपको नजर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर हाजा है और सिर्फ दो अंबिया के नाम आपको मिलते हैं, इनकी तादाद भी कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। मुनसरिफ अस्मा की तादाद कितनी है, गैर मुनसरिफ की कितनी है, इसकी कितनी है, ये कंप्लीट इन डेप्थ पूरे पूरे तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। तो मुनसरिफ में क्या होता है, जैसे कि आप इस नाम से देख सकते हैं, तीनों हालतों में इसकी तब्दीली पाई जाती है और तनवीन के साथ आपको मिलता है। गैर मुनसरिफ क्या होता है, पेश की हालत में तो पेश के साथ ही आपको मिलेंगे, यानी कि मरफू। लेकिन यहाँ पर जबर और जेर दोनों में एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है आप सभी को। और मबनी में ये पेश, जेर, जबर, ये हर जगह एक जैसे होते हैं। जैसे कि हाजा है, जो ये के लिए है, इशारे के लिए है, और ईसा नबी का नाम है, ईसा और मूसा, क्योंकि ये अलिफ मकसूरा है, इस वजह से ये मबनी अस्मा में जाता है। ठीक है, ये क्लियर है या और एक बार इसको समझना है? जी जी क्लियर है। ओके। अभी हम अपने पीडीएफ की तरफ देखेंगे वापस। तो ये जो डेफिनेशन है, पहले मुअर्रिब आप देखें, जो एराबी हालत के ऊपर बात करता है इस्म की। मबनी, ये किसी हाल में नहीं बदलते हैं। मुनसरिफ, तीनों हालत में बदलते हैं। गैर मुनसरिफ, दो हालतों में नहीं बदलते हैं, एक जगह बदलते हैं, और इनमें तनवीन नहीं आता है। और फिर उसके बाद अलिफ और हमजा है। अलिफ और हमजा हम हरूफ तहजी में इसको मुकम्मल और ऐसे इसी तरीके से बोर्ड पर डालकर हम देखेंगे और समझेंगे। अलिफ और हमजा कल की क्लास में हम लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, और हरूफ तहजी की तरफ मैं जा सकती थी, लेकिन क्लास चूंकि थोड़ा सा वक्त तवील हो चुका है, ज्यादा ले लिए हम लोग। अगर कोई सवालात है तो हम ले सकते हैं। कोई चीज अगर समझनी है तो हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।